Good morning, class 12, English reader. Book Panorama, Chapter 2, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. About the writer, Khushwant Singh is one of the most celebrated authors of India. Apart from being a writer, he has been a lawyer, a public relations officer, and the editor of the Illustrated Weekly of India. Two of his famous novels are Train to Pakistan, published in 1956, and I Shall Not Hear the Nightingale in 1961. Let's know something about the story on page number 30. In the story, The Portrait of a Lady, Khushwant Singh presents a portrait of his grandmother. She is seen as a very religious and down-to-earth lady who believes in values. यहाँ जो values है इसका मतलब है she is quite emotional and attached to her family. The author traces a relationship with her in the story. यानी यहाँ पे जो हमारे author हैं वो अपने और अपनी ग्रैंडमदर के बीच जो रिलेशनशिप है उनकी जो मेमोरीज हैं ही इज शेयरिंग विद अस. लेट्स सी व्हाट इट इज सेइंग एग्जैक्टली इन द स्टोरी. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. ऑथर कहते हैं कि बाकी सबकी ग्रैंड मदर्स की तरह मेरी ग्रैंड मदर भी एक ओल्ड वुमन थी. 20 ईयर्स से वो उन्हें इसी तरह देखते आ रहे हैं, ओल्ड एंड रिंकल्ड. पीपल से दैट ड्यूरिंग हर यंग एज शी वॉज क्वाइट प्रिटी एंड इवन शी हैड अ हस्बैंड. नाउ इट वॉज वेरी हार्ड टू बिलीव फॉर द ऑथर. ऑथर के लिए बिलीव करना मुश्किल हो रहा था. वाई? द रीज़न हियर इज when he is describing the portrait that is of his grandfather hung above the mantelpiece in the drawing room. Mantelpiece, you can say a wooden structure जहाँ पे आप देखते हो to keep ourselves warm in cold regions. The people at their homes use firewoods. तो उस पर्टिकुलर जो जगह है, जो स्ट्रक्चर है, that is termed as mantelpiece. Now he is describing his grandfather's portrait, that is he wore a big turban and loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. He's wearing a turban, loose कपड़े हैं, उनकी जो लॉन्ग बियर्ड है दैट इज़ कवरिंग द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और वो एटलीस्ट 100 ईयर्स के लग रहे हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दिस इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट उनके शायद एक बच्चा या वाइफ होगी. इट सीम्स दैट ही मस्ट बी हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. ऑथर के मन में बार बार ये जो थॉट है वो ऐसा रिवोल्ट, यानी वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि एक्चुअली हिज ग्रैंड मदर वॉज क्वाइट प्रिटी इन हर यंग एज. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. मतलब उनकी ग्रैंड मदर जो हैं शी यूज टू शेयर विद हिम द ऑथर अबाउट द गेम शी यूज टू प्ले इन हर चाइल्डहुड. That seemed quite absurd and undignified on her part. But author को ये चीज़ें काफ़ी illogical लगती थी. The word absurd means it's quite unreasonable. And undignified का मतलब है जहाँ किसी का सम्मान जो होता है, ठीक है, असम्मान्य हम कह सकते हैं, जहाँ कोई रिस्पेक्ट ना हो on her part. और वो उसे ट्रीट करते थे as fables of the prophets she used to tell us. Fables, you can say the fictional stories of the prophets. Prophets, the word mean that you can say जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके बारे में स्टोरीज हैं. तो जो ऑथर हैं वो अपनी दादी माँ की जो गेम स्टोरीज हैं उन्हें फेबल्स और प्रोफेट्स मान के ही कंसिडर कर लेते थे. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. अब यहाँ पे ग्रैंड मदर के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है दैट शी शॉर्ट हाइटेड एंड बिट फैट एंड स्लाइटली बेंट, यानी थोड़े से झुकी हुई हैं. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरी वे टू एवरी, यानी उनके चेहरे पे इतने रिंकल्स हैं ऐसा लगता है जैसे वो एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रहे हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द फेस टू अनदर. नो वी वर सर्टन दैट शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. यानी राइटर ये कह रहे हैं कि मैं मान ही नहीं सकता कि वो कभी अपने यंग एज में इतनी प्रेटी थी. नहीं, वो हमेशा से ऐसी ही हैं. ऐसी मतलब old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ओल्ड दिख रही हैं कि अब नहीं लगता कि इससे ज़्यादा वो ग्रो करेंगी ओल्डर, बिकॉज सिंस 20 years आई एम सीइंग हर जस्ट द सेम. वो 20 years से ऐसी ही हैं, देयर इज़ नो चेंज.
शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. वो इतनी सुंदर नहीं थी बट वो वाकई में सुंदर दिखती थी. वो हमेशा से सुंदर थी. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of a rosary. Now, जो word है hobble, that is meaning when you are walking in an awkward way. Now you can understand this word because grandmother बहुत old हैं, तो जब वो walk कर रही हैं तो she is trying to balance her body. और उन्होंने जो ड्रेस पहना हुआ है वाइट कलर का, दैट इज़ कम्प्लीटली स्पॉटलेस, यानी कोई भी तरह का स्टेन नहीं है उनकी ड्रेस पे. वन हैंड इज रेस्टिंग ऑन अ वेस्ट, यानी एक हाथ उनका अपनी वेस्ट पर है और जो दूसरा हाथ है, नाउ वेस्ट पर हाथ जो है दैट इज़ टू बैलेंस हर स्टूप. जो वर्ड स्टूप है दैट इज़ व्हेन यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी व्हेन यू आर वॉकिंग एंड शी इज़ ट्राइंग टू बैलेंस हर बॉडी. सो शी इज़ कीपिंग वन हैंड ऑन हर वेस्ट एंड अदर हैंड इज टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, यानी जो भजन वो गा रही हैं. ठीक है ना. रोजरी जब हम माला जैसे होता है ना, आप कोई जप करते हैं या माला फेरते हैं तब आपके हाथ में जो माला होती है बीड्स वाली, सो वो उस तरह से अपनी माला फेरती जा रही हैं. भजन करने वाली जो माला होती हैं उसको हाथ में लिए जा रही हैं. हर सिल्वर लॉक्स वे स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड फेस. सिल्वर क्योंकि बहुत एजेड हो गई हैं तो उनके हेयर जो है वो एकदम सिल्वर कलर से लगते हैं, वाइट हो गए हैं. लॉक्स यहाँ पे वर्ड है दैट इज़ डिफाइनिंग कि उन्होंने प्लेट्स बना रखी हैं, ये दो चोटियाँ बनाई हुई है. एंड द हेयर्स आर क्वाइट स्कैटर्ड, बहुत अनटाइडी वे में स्कैटर्ड है उनके फेस पे. उनका फेस जो है वो पेल एंड पकड़ फेस बताया है. लाइक पेल इज आप कह सकते हो डल फेस है, और जो वर्ड है पकड़ दैट इज़ लाइक झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. उनके जो लिप्स है वो कंटिन्यूसली अपने प्रेयर्स बोल रहे हैं बट इट इज़ नॉट हर्ड ईजीली. येस शी वॉज ब्यूटिफुल. अब जो हमारे ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि हाँ वो बहुत सुंदर थी. वो इतनी सुंदर थी कि जैसे लगता है विंटर्स में जो माउंटेन लैंडस्केप्स होते हैं जो एक एक्सटेंड तक ऐसा फील होता है जैसे प्योर वाइट पीसफुल सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, इस तरह से उनकी जो अपीयरेंस है वो दिख रही हैं. एंड शी इज़ क्वाइट सीम्स टू बी नो ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, यानी जब वो ब्रीथ कर रही हैं तो ऐसा फील हो रहा है कि शी इज़ क्वाइट हैप्पी. वो बहुत शांत हैं एंड सेटिस्फाई हैं अपने लाइफ से. तो जो प्रिटेंड हो रहा है राइटर को वो उन्होंने इस तरह से इसे एक्सप्लेन किया है इन कंपैरिजन टू द लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. Now वो बता रहे हैं कि उनके साथ उनकी ग्रैंडमदर की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी. जब उनके पेरेंट्स सिटी में रहने गए थे तो वो उन्हीं के पास रहते थे. शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. सुबह की जो उनकी डेली रूटीन थी कि उन्हें जगाना, उन्हें स्कूल के लिए रेडी करना. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. मोनोटोनस सिंग सॉन्ग का मतलब है लाइक आप जब इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बिना मन जब आप कुछ बोल रहे हैं, ओके, विच इज़ नॉट ऑफ इंटरेस्ट, बोरिंग सा लगता है, तो वो जब ऑथर को नहला रही हैं, उन्हें ड्रेसअप कर रही हैं, वो उन्हें गा रही हैं इस होप में कि शायद उसे सुनकर जो हमारे ऑथर हैं वो भी उसे बाय हार्ट लर्न कर लेंगे. ऑथर को उनकी वॉइस पसंद थी इसलिए वो सुनते थे, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें लर्न करने की कोशिश नहीं की. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड. यानी उनकी जो वुडन स्लेट है वो उसे लेकर आती जिसे ऑलरेडी उन्होंने वॉश किया हुआ है और उसके ऊपर येलो चॉक से प्लास्टर किया है, यानी कवर अप किया है उसको. उसके साथ उन्होंने एक टाइनी अर्दन पॉट जिसमें इंक है और रेड पेन एक बंडल में टाई अप करके सभी चीज़ों को हैंड ओवर कर दिया है ऑथर को. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक. नाउ ब्रेकफास्ट में वो क्या खा रहे हैं? थिक यानी मोटी स्टेल चपाती जो बासी है यानी प्रीवियस नाइट बनी हुई है, विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. उसके ऊपर थोड़ा सा बटर और शुगर स्प्रेड है. वी वेंट टू स्कूल. शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स. यानी ये नाश्ता करने के बाद वो स्कूल के लिए जाने लगते हैं और ग्रैंडमदर अपने साथ और भी जो स्टेल चपातीज हैं वो कैरी करती हैं सो दैट ऑन द वे शी कैन feed the village dogs.
My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. वो हमेशा साथ जाती थी because the school was exactly near to the temple, almost attached. The priest यानी जो मंदिर के पुजारी थे वो बच्चों को वहाँ पे जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं और मॉर्निंग प्रेयर्स हैं वो सिखाते थे. जब तक बच्चे रोज़ में बैठ के यानी जो वरांडा है वहाँ पे एक बड़ा सा ओपन स्पेस होता है टेम्पल्स में हम देखते हैं, तो वहाँ पे इधर साइड यानी दोनों साइड में रोज़ में बच्चे बैठे हैं एंड दे आर रिसाइटिंग एंड सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स एंड प्रेयर्स इन अ कोरस. उनकी जो ग्रैंडमदर है वो अंदर बैठ के जो पुराने ग्रंथ हैं यानी स्क्रिप्चर्स जो हैं उन्हें रीड कर रही हैं. When we had both finished, we would walk back together. जब उन दोनों का कंप्लीट हो गया ये, then they are walking back to home. This time the village dogs would meet us at the temple door. इस समय जो village dogs हैं वो temple door पे उन्हें मिलते हैं. They follow us to our home growling and fighting. Growling जो word है that means making a sound in threat. जब आप किसी को डराने के लिए थोड़ी सी लो साउंड क्रिएट करते हैं, जो डॉग्स हैं आपस में एक दूसरे को थ्रेटन कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं फॉर द चपातीज जो ग्रैंड मदर उनको खिला रही हैं. So today we'll end up here and you go through the chapter. If you have any queries regarding the explanation of the chapter, let me know in the feedback in our WhatsApp group. Go through the chapter, try to figure out the underlined words, the difficult words, understand their meanings and the content which we have read today. Till then, thank you class.